जयेंद्र साहब जी सॉरी, वो मेरे से बाय मिस्टेक रॉन्ग बटन दब गया। अच्छा अच्छा, नहीं कोई सुनी। एक मिनट साहब जी, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है सौरभ जी, मंगलाचरण शुरू। वंदितु सवसिते धूमचलं मनोबलिर्मयेपाहुर्दृढम् नमः समासाराय स्वानभ्याचकासते स्वभावभावाय सर्वभावान्तरच्छिदे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायानं नमो लोहे सव्वसानम्। आई थिंक आठवीं गाथा तो नवमी पे आ गए। okay, so last time we completed gatha number 8. In gatha number 8, we discussed that a person who is unable to understand any particular language, so as per rule or as per the nature of language, the person who understands that language in which we just explain anything, so it would be very easy to understand. As Acharya is saying that if a person who is knowledgeable of Vyavharnay and it is easy to understand to Vyavharnay, then we must explain Jain Tattva in Vyavharnay. Though Vyavharnay is in itself is a true or Satyarth, but when we compare Nischay and Vyavharnay, so we say that Vyavharnay is Asatyarth and Nischay is Satyarth. Now we completed Gatha number 8, and in 9 number Gatha, there was a question that if how Vyavharnay is just a Pratipadak of Nischay. You just told us that Acharya told us in Gatha number 8 how Vyavharnay is Pratipadak of Nischay. Then Gatha number 9 and 10, both Granthar, just Acharya has written at same place. It means just he covered same topics. Jo hi sudein hi gachadi appanamidam tu kevalam suddham tam sud kevali misino bhadanti loyap divayara jo sudranam sabbam janadi sud kevalim tamahu jana ranam appa sabbam jamma sud kevali tamma. There are two words, Nischay Shruta Kevali and Vyavhar Shruta Kevali. Remember these two words, Nischay Shruta Kevali and Vyavhar Shruta Kevali. So there are not there is no two type of Kevali. Kevali is one type, but Acharya is explaining about Nischay and Vyavharnay, and the question was asked by his disciple. We can assume that question was asked by disciple that how Nischay
how Byoharnaya is Pratipadak of Nishchay. As a result, Acharya is giving here answer in Gatha number 9 and 10. शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहें ऋषि गण प्रकाशक लोक के. It is गाथा नंबर 9. गाथा नंबर 10 in हिंदी. जो सर्वश्रुत को जानते उनको कहें शुद्ध केवली, सब ज्ञान ही है आत्मा, बस इसलिए शुद्ध केवली. You have heard, always I just mentioned a name of one very prominent Acharya, Bhadrabahu. So Bhadrabahu, Acharya Bhadrabahu was our Antim Shuddha Kevali. Shuddha Kevali means Acharya who is just who has realized his soul. It means उन्होंने आत्मा का अनुभव तो कर ही लिया है, साथ साथ उनको द्वादशांग जो जिनवाणी के 12 अंग हैं, उन 12 अंगों का ज्ञान भी है. इसलिए हम भद्रबाहु स्वामी को बोलते हैं कि पंचम काल के अंतिम शुद्ध केवली हैं. चूंकि आत्मा का अनुभव तो उनके बाद कई सारे आचार्यों को हुआ है, बट इट इज द रिमार्केबल थिंग, केवल आत्मा के अनुभव के कारण हम किसी आचार्य को शुद्ध केवली नहीं कहेंगे. यहां कहा है कि वही आचार्य जिनको आत्मा का अनुभव है उनको हमने कहा निश्चय शुद्ध केवली, और वो जो द्वादशांग का उनको नॉलेज है, याद है, उनको पाठी है, देन वी विल कॉल हिम एज व्यवहार शुद्ध केवली. सो रिमेंबर दीज टू वर्ड्स, निश्चय शुद्ध केवली एंड व्यवहार शुद्ध केवली. Always you will listen in Pravachan, always you will find this word in Granth, Antim Shuddha Kevali, Bhadrabahu Swami. So Shuddha Kevali, there are two words, Shuddha and Kevali. He is not Kevali, Acharya is not Kevali, but he has understood or he has learned Dwadasang. Dwadasang, it means our Jinendra Dev has just delivered his speech, and it has been just there has been created a one pack of 12 units, chapters, ang, that is called Dwadasang. So it is not easy to learn, to understand Dwadasang, but it is possible for Shuddha Kevali. So Bhadrabahu Swami was last Shuddha Kevali of this Pancham Kal. That's why we call him Shuddha Kevali. Shuddha Kevali अर्थात जिन देव की बात उनने पूरी तरह से याद कर ली है, जितना उनकी वाणी में आया है उनने पूरी तरह से याद कर लिया है, उनके 12 अंगों में निबद्ध जो बात है, and he knows everything about that. So it is called Shuddha Kevali. So we are talking about Nishchay and Vyavharnaya. And if we just relate the matter from previous Gatha, in previous Gatha, the question or the connection from previous Gatha is that how Vyavharnaya is a Pratipadak or explanatory of Nishchay. It was the question. Then Gatha number 9 and 10, Acharya has written to explain this question. कि किस तरह से होता है. तो बोले जब हम कहते हैं व्यवहार से शुद्ध केवली, तो आप ये बाय डिफॉल्ट समझ लेना कि उनको द्वादशांग का पूरा ज्ञान है, और साथ में मतलब इट इज नॉट पॉसिबल इफ एनी मुनि, शुद्ध केवली कैन नॉट बी एनी गृहस्थ, शुद्ध केवली कैन नॉट बी एनी क्षुल्लक, ऐलक, आरिका. शुद्ध केवली ऑलवेज विल बी sadhu, and he is not Dravalingi only, but Bhavlingi will be also. So Bhavlingi it means कि उनको आत्मा का ज्ञान भी है. तो जब उनको आत्मा का ज्ञान है तो हम उनको बोलते हैं वो निश्चय शुद्ध केवली हैं. आत्मा का ज्ञान होने के कारण से हम उनको कह रहे हैं वो निश्चय शुद्ध केवली हैं, और बाहर में द्वादशांग का ज्ञान होने के कारण से उनको हम कहते हैं वो व्यवहार शुद्ध केवली है. If you just feel any difficulties, because as we just go ahead to study this Granth,
It's a natural. You will find many words which are new to you. And if you find any difficulty to understand, so please feel free to ask me that I am unable to understand this word, or क्या subject matter है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. Then definitely we will discuss here. Our purpose is not to complete the Granth within 1 year or 2 years. The core purpose of ours is to understand the Granth, which is very prominent, famous, and main Granth of our genealogy, which is Samay-sar. So it is clear. Kevali, Shruta Kevali. Kunjanji, you also raised your hand. I had 1 or 2 questions. We said that Shruta Kevali knows the Dwachang, and that's why only in the 4th Tara they will be there, or in the 5th they cannot be there because the Dwachang is not available. No. In 5th Tara, so Acharya Bhadrabahu Swami, he existed in 5th Tara, but पूरे पंचम काल में नहीं रहते हैं वो चौथा काल खत्म होता है ना, जैसे आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य का समय था. So it was the time when Lord Mahavir just got salvation, and after 250 years, Bhadrabahu Swami was Antim Shruta Kevali of this Kal. So, Saurabh, just to understand this, Bharat Kshetra mein there won't be Shruta Kevali, but in Videsh Kshetra there will be Shruta Kevali? Yeah, of course. हमारे साथ तो टाइम की बाउंडेशन है ना, हमारे साथ तो बाकी वहाँ तो टाइम की बाउंडेशन है. Right. Or koi, again, this is just a question in my mind. If someone has the Gaman Vidya, or again some kind of Audaric body, and some munis from here, from Bharat Kshetra, go to Videsh Kshetra and can get the Dwachang knowledge, and they become Shruta Kevalis? Again, I understand with time they can't, but is that a possibility? No. हर चीज के लिए एक समय होता है. जैसे अभी हम what we feel nowadays, that this scientific world is very intelligent. Softwares, we have created spacecraft, we have created many such automatic machines which are just creating wonders for this world. But आपको पता है द्वादशांग जो है ना वो बहुत विस्तार से है. हमें ऐसा लगता है कि हम ऑन प्रोग्रेस हैं, बाकी हमारा Waking up, Saurabh ji. सुना नहीं दे रहा आपको? Saurabh ji, yeah. Kunjan, so even if Sadhu Maharaj travels from here to नहीं सौरभ जी आ गए. सौरभ जी. Saurabh ji, last we couldn't hear you. Last we just couldn't hear you. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि एक प्रत्येक समय का होता है. हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी साइंटिफिक जो वर्ल्ड है ना ये बहुत प्रोग्रेसिव है, क्रिएटिंग वंडर. हमने द्वादशांग नहीं देखा है ना. मैं इस बात के लिए एक एग्जांपल देता हूँ सब लोगों को कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन बहुत अभाव में निकाला हो, सिंस चाइल्डहुड और his family from 1 or 2 or 3 generation, they are living in poverty, and suddenly if they earn 40 lakh rupees, 50 lakh rupees, then they consider themselves, oh, we have been millionaire and we are the king of this world. लेकिन उनको नहीं पता है कि दूसरे लोगों के पास तो डे की इनकम है, ये डे की, कुछ लोगों की तो सेकंड्स की इनकम है, उनको नहीं पता. ऐसे ही अभी वर्तमान में हमें जो ज्ञान है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञान है ये, तो देखो क्या क्या डेवलप कर लिया हमने, कैसी कैसी चीजें हमने विकास कर ली है हमने. लेकिन जो द्वादशांग है ना, वो द्वादशांग बहुत विस्तार से है, और वो सबका दिमाग तो वैसा होता नहीं है. दिमाग मतलब क्षयुत्सम. और इस पंचम काल की अब तो योग्यता है ही नहीं. बस उस टाइम में वो आखिरी शुद्ध केवली होने थे, उनकी योग्यता थी, उनका उस समय सबका दिमाग ही वैसे ही चलता था. उसके बाद ही हमारे समझ लो शास्त्र लिखना चालू हुए.
उस और ये लिखना चालू हुए इस बात का प्रतीक है ना कि दिमाग कमजोर होने लगा, लोग कम याद रखने लगे। तो अभी वो पॉसिबल नहीं है। और विदेश क्षेत्र भी जाते हैं तो वो ठीक है, बोलेगा आचार्य भगवान की अगर दिव्य ध्वनि खिलेगी तो वो समझेंगे जरूर, लेकिन वो इतना याद नहीं रख पाएंगे। तो उनको हम निश्चय शुद्ध केवली नहीं कहेंगे, सॉरी व्यवहार शुद्ध केवली नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सौरभ जी। एंड अगेन अनदर थिंग दैट मैंने सुना था कि जो गंधर से डायरेक्टली सीखते हैं उन तक ही वो नॉलेज आ सकता है, उसके बाद तो वो नॉलेज आना भी डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, सबका अपना अपना क्षयोत्सम होता है ना। तो इवन यहाँ तक कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है ना, तो प्रत्येक जीव अपने अपने क्षयोत्सम से ही उनकी वाणी को समझता है। सपोज दैट एनी अ पर्सन ही कैन जस्ट अंडरस्टैंड मोर, और उनके बगल में कोई व्यक्ति बैठा है वो कम समझ सकता है, तीसरा है वो कुछ ज्यादा समझ सकता है। तो ये प्रत्येक इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ लेकिन जो शुद्ध केवली की बात हो रही है, वो शुद्ध केवली की बात यही हो रही है कि जिनको द्वादशांग का ज्ञान है, तो आचार्य कुन ने उनको शुद्ध केवली कहा है। तो वो यहाँ ये बताना चाहते हैं निश्चय व्यवहार नय में कि वो क्वेश्चन ये था कि निश्चय नय व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक कैसे है। तो उसमें 9-10 नंबर की गाथा में आचार्य कुन ये बताना चाहते हैं कि जो व्यवहार शुद्ध केवली है ना, हम उसको निश्चय नय भी बोलते, निश्चय शुद्ध केवली भी बोलते हैं। और अगर कोई मुनिराज आत्मा के ज्ञानी हैं तो हम उनको शुद्ध केवली नहीं बोलेंगे। हम शुद्ध केवली उनको तभी बोल सकते हैं जब उनको व्यवहार से द्वादशांग का ज्ञान हो, चूंकि है व्यवहार वो तो हो गया ना। हमने शुद्ध केवली उनको कहा, लेकिन किसके बेसिस से कहा? उनको बाहर में उनको द्वादशांग के पाठी हैं वो, और अंतरंग में आत्मज्ञानी। तो आचार्य कुन यहाँ ये बताना चाहते हैं कि व्यवहार नय किस तरह से निश्चय नय का प्रतिपादक। देखिए आचार्य कुन जो थे वो मोक्ष मार्गी थे और ही वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। उन्होंने निश्चय नय व्यवहार नय के प्रतिपादन को इतनी सुंदरता से वर्णन किया। व्यवहार नय का निषेध तो किया उन्होंने, लेकिन निश्चय नय के आगे निषेध किया उन्होंने। चूंकि ये ग्रंथ निश्चय नय परक है, बात पूरी निश्चय नय की करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया कि व्यवहार नय कहाँ उपयोगी है। तो जहां जीव अपरम पद में है उनको व्यवहार नय उपयोगी है। तो यहां पूछा गया शुद्ध केवली किसे कहेंगे, तो बोले शुद्ध केवली हम उनको ही कहेंगे कि जिनको अंतरंग में आत्मज्ञान तो है ही है, लेकिन साथ में उनको बहिरंग में उनको द्वादशांग का ज्ञान है, द्वादशांग के पाठी हैं, उनको ही कहेंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, this निश्चय श्रुत केवली and व्यवहार श्रुत केवली we will apply on same person. So person will not be different, that he is निश्चय श्रुत केवली, he is व्यवहार श्रुत केवली. So if we are using this word श्रुत केवली, it is inbuilt. श्रुत केवली it means a मुनिराज who knows about द्वादशांग, उनको याद है वो, उनको समझ में आई है वो, उनको उसका ज्ञान है। तो व्यवहार से उनको हमने शुद्ध केवली कह दिया। अब बिना आत्मज्ञान के तो कोई मुनि ऐसे हो नहीं सकते ना जो कि इस तरह से पूरी द्वादशांग समझ लें। तो उनको हमने कह दिया कि उनको आत्मा का ज्ञान तो है ही, उनको तो आत्मज्ञान के कारण से निश्चय शुद्ध केवली और बहिरंग के कारण से व्यवहार शुद्ध केवली कहलाते हैं। तो यहाँ आचार्य कुन ने कहा हम इसको पढ़ भी सकते हैं, पढ़ते भी ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। कुन शेयर किया था आपने? हाँ सर। हाँ एक मिनट, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। आदर्श जी आप पढ़िए। The Jeev, the Jeev who through his faculty of scriptural consciousness realizes the pure nature of the real self is called a real, all-knowing master of scripture, Nishchay Srut Kevali.
by the Ris, the illuminators of the world. The Jeev who comprehends the entire scriptural knowledge comprising the 12 canonical works, Angas, is called an empirical all-knowing master of scripture, Vyavhar Srutakevli, by Lord Jin. As the entire scriptural knowledge and the resultant scriptural consciousness is the real self, he is called a Srutakevli. देखिए यहाँ भी वही सेम चीज कही है. What just we are detailing here, तो इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन गाथा का वैसे ही किया है. The Jeev who through his faculty of scriptural consciousness realize the pure nature of real self. अब वो शुद्ध केवली को इतने लंबे सेंटेंस में उनको ट्रांसलेशन करना पड़ा. अगर शुद्ध केवली itself is a word जो कि अपने आप में पर्याप्त है कि शुद्ध केवली हम किसे कहते हैं और कौन होते हैं. फिर भी इस भाषा में ऐसे ही ट्रांसलेट हो सकता था, तो ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया है. इज कॉल्ड रियल ऑल नोइंग मास्टर्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, निश्चय शुद्ध केवली, बाय द रेसिस थ्रू द इल्यूमिनेटर ऑफ द वर्ल्ड. द जीव हु कॉम्प्रिहेंडेड द एंटायर स्क्रिप्चर नॉलेज comprising 12 canonical work organs is called an empirical all-knowing master of scriptures, Vyavhar Srutakevli, by Lord Jin. As the entire scriptures knowledge and the resultant scriptural consciousness is the real self, he is called Srutakevli. So Vyavhar Srutakevli, Nischay Srutakevli. Here only he just translated this meaning of this katha only. But if we talk in detail, so we can connect that what I have explained you here to you. That connection ऐसे बैठेगा कि वो हम उनको शुद्ध केवली कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको द्वादशांग का ज्ञान होता है. आत्मा का ज्ञान से अगर हम कहें तो सारे मुनिराज को शुद्ध केवली कहना चाहिए, जबकि सारे मुनिराजों को तो हम शुद्ध केवली कहते नहीं ना. हम शुद्ध केवली तो हम भद्रबाहु को कहते हैं. कि भी अभी वर्तमान के हमारे सबसे जो लेटेस्ट जो शुद्ध केवली हैं वो कौन है, तो बता दिया भाई. वो लेटेस्ट जो शुद्ध केवली हैं वो भद्रबाहु हैं. तो इस तरह से वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक. अगर कोई केवली को, कोई मुनिराज को, भद्रबाहु स्वामी को द्वादशांग का ज्ञान ना हो, आत्मा का ज्ञान हो, तो हम उन्हें शुद्ध केवली नहीं कहेंगे. वो है मुनिराज हैं, आत्मज्ञानी मुनिराज हैं, बाकी हम उनको शुद्ध केवली नहीं कहेंगे. तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो आप लोग बताइए. कुंजन जी. हाँ सौरभ जी. हाँ तो बताइए क्या कह रहे हैं. सब लोग बताइए थोड़ा थोड़ा, ताकि मुझे क्लियर हो कि आप लोग समझ सके हैं जो यहाँ आचार्य कह रहे हैं. जो 8वीं गाथा में हम व्यवहार और निश्चय से समझ रहे थे, what we were learning about why if you're trying to explain a non-Aryan the Aryan language, he won't be able to understand. To clarify that, Acharya Kunj is trying to explain the differences between the Nischay Srutkevli and the Vyavhar Srutkevli. Okay, तो इसको ऐसे कैसे कनेक्ट करेंगे हम? How we can just connect that Vyavharnay is a Pratipadak of Nischay. How we can explain to others to make him understand that how Vyavharnay is Pratipadak or explanatory of Nischay. The way we are saying is doesn't mean that someone's knowledge is limited, but it's reflective of the reflective of the complete of the knowledge. अभी मुझे देना. एक मिनट. So between the Nischay and Vyavharnay, if we try to say something that again by explaining in this one, they are trying to say even though they might have the knowledge, the level of the Sayoksham or the Gyan is still limited,
and that's why from Nishchay you cannot be trying to say that they are Shuddha Kevali. But by Vyavhar, from their external conduct as well as other things, you can say they are व्यवहार नय से वो शुद्ध केवली हैं. Okay, good. Pritesh ji, आप बताइए what just Acharya has explained in Gatha number 9 and 10, and how is it important to understand Samay-Sar? So I think what they're saying here is Shruta Kevali means somebody who has knowledge of entire 12 angas or Dwadashangi, and it's not just that they have you cannot have just the knowledge. They have the scriptural knowledge, but they also have self-realization. Atma ka gyan hai. They have realized, they have experienced their own soul. Somebody who has experienced their own soul is not necessarily Shruta Kevali, but you have to have that. Along with that, you have to have the knowledge of all 12 angas or Dwadashangi, entire agam. If you have all of that, only then you are truly a Shruta Kevali. And that can only be a sadhu, not a sadhvi, not a narika mata, not elak shullak or any other shravak. You have to be a sadhu, and if you have Shruta Kevali, by default, if you have knowledge of 12 agams in total knowledge of 12 agams, then you definitely have Nishchay se aapko, you definitely have that self-realization of the soul. The consciousness, and that's what they're trying to say. Okay, great. देखिए, पूरे जिनागम का उद्देश्य मैं हर क्लास में वैसे आप लोगों को बताते ही, सालों से हम एक ही चर्चा कर रहे हैं. पूरे जिनागम का उद्देश्य जो है ना, वो आपको आपकी शक्ति का भान कराकर आप में अनंत शक्तियां, अनंत गुण हैं, इस बात को आपको रियलाइज कराना है. So remember, we are not here to study this mental exercise. कि निश्चय ने, व्यवहार ने. Why should we understand this? But this kind of understanding is helpful to understand Atma. To understand Atma, it means to realize my soul. That's why हम, वो कहता ना हिंदी में कि हम इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, आप सीधे पॉइंट पे आओ ना. आचार्य पॉइंट पे क्यों नहीं आते? ये पॉइंट पे आने की तैयारी. भी आपको किसी के घर जाना है, कोई व्यक्ति कोई व्यापार करे, तो वो व्यापार करे तो वो तो थोड़ा सा फैलाव तो होगा ना, थोड़ी समस्याएं तो आएंगी ना. एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, कभी टैक्स की प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, फिर रिजल्ट मिलेगा. ऐसे ही आत्मा को समझने हम जा रहे हैं ना, तो आत्मा को समझने के लिए हमें ये निश्चय व्यवहार नय समझना पड़ेगा. तो जहां भी आचार्य निश्चय नय व्यवहार नय को हम एक्सप्लेन करें, पर्यार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय को एक्सप्लेन करें, वहां हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमें आत्मा पर श्रद्धान कराने की बात कर रहे हैं. तो ये पक्की बात है कि हमारे आचार्य हमें केवल एक ही बात करते हैं कि आप श्रद्धान करो आत्मा पर. किसकी आत्मा पर? आप खुद की आत्मा पर श्रद्धान करो. आप में अनंत शक्तियां हैं. पूरे जिनागम में एक ही बात कही गई, आप में अनंत शक्तियां हैं, आप ये मानो. अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम जो देखते हैं ना, हम उसको सही मानते हैं. हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ेंगे, जब सेकंड अधिकार आएगा तो उसमें क्षयोत्सम ज्ञान का स्वरूप आया है. बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो. क्षयोत्सम ज्ञान क्या बोलता है? हमारे सामने जो रहता है ना, हम उसको याद रखते हैं. तो हमारे सामने तो सारी सांसारिक बात है, जो श्रद्धान से तो मैच खाती नहीं. हम तो देखते हैं जो मेहनत ज्यादा करता है वो पैसा ज्यादा कमाता है, और जिनागम तो बोलता है कि पुण्य उदय से धन आता है. तो ये मैच नहीं होती, ये चीजें मिसमैच होती है. हमारे सामने, आंखों के सामने जो दिखता है ना, हम उसको सत्य मान लेते हैं, यही सही है. ऐसे ही हमें चूंकि आत्मा नहीं दिख रही ना, तो अब आचार्य क्या करें? आपको आत्मा दिखती तो है ही नहीं, लेकिन उस तक पहुंचाना है उनको. तो कैसे पहुंचा रहे हो? वो आपको ना निश्चय नय व्यवहार नय के माध्यम से पहुंचा रहे कि आप इसको समझो. तो उद्देश्य यहाँ पूरे जिनागम का, चाहे मंदिर जाने का हो, चाहे पूजन करने का हो, चाहे व्रत का हो, चाहे उपवास का हो, उद्देश्य कोई सा भी हो, वो सारे के सारे उद्देश्य केवल आत्म कल्याण के लिए ही है, आत्मा को जानने.
तो रिमार्केबल थिंग ये है कि वी मस्ट हैव अ श्रद्धान on our soul, but how is it possible to understand Atma? Is it possible? It is possible by just understanding Jinvani. If we just dedicate ourselves in understanding Jinvani, definitely we will understand निश्चय ने व्यवहार ने प्रव्यार्थिक ने प्रव्यार्थिक ने शक्तियां और उपात्मा, उसके बाद हमें विश्वास हो जाएगा कि ऐसा है। इसी तरह से जो निश्चय ने व्यवहार ने का जो समझा रहे, तो आप पूरी जिनवाणी को पढ़ेंगे तो निश्चय ने व्यवहार नए में ही निबद्ध है। निबद्ध इट मीन्स इट हैज बीन रिटन इन फ्रॉम निश्चय नए पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम व्यवहार नए पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इस गाथा का मैटर है और हमने इसका पढ़ा भी है। इसमें किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम गाथा नंबर 11 लेते हैं। गाथा नंबर 11 लेते हैं हम। अब 9-10 से हम गाथा नंबर को रिलेट करते हैं कि गाथा नंबर 11 में क्या टॉपिक आ रहा है। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है। प्रश्न उपस्थित होता है ऐसा कि व्यवहार नए ने परमार्थ का प्रतिपादकत्व के कारण अपने को भली भांति स्थापित कर लिया, तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए। मैं इंग्लिश में बता रहा हूं। There may be a question that when Vyavahar Naya has established itself as explanatory of Paramartha or Nishchay Naya, then why we should not follow that Vyavahar Naya? Because you have proven, Acharya has proven here that Vyavahar Naya ने निश्चय नय का प्रतिपादन किया मतलब व्यवहार नय के माध्यम से निश्चय नय समझ में आया। Then there may be a one question. Okay, that question may be from my side, from your side, from anyone's side, even from Acharya's side. So question is that व्यवहार नय ने परमार्थ के प्रतिपादकत्व के कारण अपने आप को भली भांति स्थापित किया है, तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए। आपने व्यवहार नय की महिमा बताई और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि आई मस्ट फॉलो व्यवहार नय। दिस इज द कनेक्शन विथ आवर गाथा नंबर 11। मैं पहले 9-10 नंबर की गाथा पढ़ता हूँ, आप लोग एक साथ पढ़ना, फिर मैं 11 नंबर की गाथा आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन था सौरभ जी, बिफोर यू गो फर्दर। ओके प्लीज। सो व्यवहार नय का फॉलो नहीं करना है, निश्चय नय का फॉलो करना है, मतलब अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें तो इसका मतलब ये होता है क्या कि मैं एक बार जान लूं सब कुछ एंड देन आई जस्ट ट्राई टू इमर्स माई सेल्फ इन सोल एज अपोज्ड टू थिंकिंग अबाउट द क्वालिटीज एंड ऑल दैट स्टफ। जब हम कह रहे हैं कि मैं व्यवहार नय को नहीं फॉलो करूंगा और सिर्फ निश्चय नय को फॉलो करूंगा, मतलब हम कहना क्या चाहते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। हाँ, गुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो प्रतीश जी ने पूछा है कि जब हम ये कहते हैं कि निश्चय नय को फॉलो करो, व्यवहार नय को फॉलो नहीं करो, तो हम क्या कहना चाहते। पूरे ग्रंथ में आपको यही बताया जाएगा, लेकिन मैंने पहली क्लास में कहा था, रिमेम्बर ऑल ऑफ यू जस्ट हैव रिमेम्बर, कि अपेक्षा से कथन है हमारे। जब कहा जाए कि निश्चय नय ही उपादेय है, तो व्यवहार नय का निषेध कर दिया जाता, लेकिन अपेक्षा से। जो परम पद में स्थित हैं और जो अपरम पद में स्थित हैं, तो व्यवहार नय जो परम पद में स्थित है उनको तो निषेध हो सकता है, लेकिन जो अपरम पद में स्थित है उनको व्यवहार नय निषिद्ध नहीं हो सकता। तो जहां कहा जाए कि निश्चय नय फॉलो करने योग्य है और व्यवहार नय फॉलो करने योग्य नहीं है, वहां केवल एक ही तात्पर्य है कि आपके आत्मा का कल्याण जब आप स्वयं को जानेंगे ना, उससे ही होगा। क्योंकि वहां ऐसा निषेध नहीं है कि आपको व्यवहार नय नहीं करना चाहिए, वहां ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि एक निश्चय नय के जानकार इट मींस अ पर्सन हु इज जस्ट ट्राइंग टू रियलाइज हिज सोल और ही हैज रियलाइज्ड सोल, तो उसको बहिरंग में तो उसको ऑटोमेटिक वो चीजें फॉलो होंगी। तो निषेध में भी अगर कहीं प्रदेश जी किया जाएगा ना, तो वो अपेक्षा रहेगी उसमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल अब व्यवहार नय का निषेध है तो हमें मंदिर नहीं जाना, दान नहीं देना, पूजन नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। वहां केवल इतना तात्पर्य है कि निश्चय नय के आगे व्यवहार नय निषेध है। अर्थात जैसे अपन कहते हैं ना कि दो दोस्त बहुत पक्के, लेकिन
राष्ट्रपति के आगे कोई दोस्ती नहीं चलती इन लोगों की आपस में। वो आके खड़े हो गए तो फिर राष्ट्रपति का सम्मान सबसे पहले, इनकी दोस्ती कोई काम की नहीं, वो निषेध है उस समय। ऐसे ही वैसे तो व्यवहार ने हम रोज ही पालन कर रहे हैं और हो गई नहीं चाहे तो भी। हम जो पढ़ रहे हैं ये भी व्यवहार ने कई काम, पूजन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इवन चिंतन कर रहे हैं हम जो, वो भी व्यवहार है। लेकिन निश्चय ने जब आके खड़ा होता है ना तो वो बहुत यूजफुल है, और वो उसके आगे फिर कोई चीज हमारे काम की रहती। हम फेंकते नहीं, तोड़ते नहीं, लेकिन हम अपनी दृष्टि निज पर जमा लेते हैं। तो जब जब निश्चय व्यवहार का वर्णन आएगा तो वो इसी रूप में आता है। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। सौरभ जी, आई थिंक मुझे गड़बड़ हो गई है। मैं ये सोच रही थी कि निश्चय जो है उसका मतलब ये कि हम किसी चीज का नॉलेज है हमें कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या है वो हमें पता है, पर जो व्यवहार में है उसमें बेसिकली हम उसे समझने लगते हैं। लाइक पता होना और समझना दो अलग चीज है। तो मुझे लगा दोनों का ये डिफरेंस है। ये सच है या ये गलत है? नहीं, दैट इज ऑल्सो यू नो व्हाट वी आर जस्ट स्टडिंग ऑफ निश्चय ने का जो हमें अध्ययन हो रहा है ना, वो भी व्यवहार ने। निश्चय ने इज ओनली वन थिंग, द टाइम ऑफ योर रियलाइजेशन ऑफ योर सोल, दैट इज निश्चय ने। सो निश्चय ने यू नो इज वेरी फोकस। वो अपना ध्यान यहाँ वहां नहीं भटकाता है। वो क्या बोलता है कि मेरा काम केवल आत्मानुभूति जो है ना, आपको बस मैं तो बोलता हूँ वही उपयोगी है, मेरा काम वही है। तो हम जब समझ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हो सकता है व्यवहार नए के बारे में हम समझ रहे हो सकता है निश्चय नए के बारे में समझ रहे हो, किसी भी नए के बारे में समझ रहे हो, लेकिन कहलाएगा वो व्यवहार नए ही। सारी एक्टिविटीज, all activities which we are doing, just doing पूजन, व्रत, उपवास, तप, स्वाध्याय, दान, सब कुछ व्यवहार नए कवर्स करता है। निश्चय नए एक ही चीज कवर करता है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है अमी जी, सब लोगों के दिमाग में आता है और मुझे अच्छे से याद है। When I started to study समय सार, so this question also just raised in my mind. मैं कुछ समय तक तो ऐसा मानता रहा था, when I am just studying about आत्मा, that is निश्चय ने का हो गया मुझे, और जब मैं पूजन के बारे में पढ़ रहा हूँ तो व्यवहार ने का हो गया। Then later on when हमारे गुरुओं ने, हमारे शिक्षकों ने बताया, then it was very clear in my mind. हाँ प्रतीश जी, आप कुछ कह रहे हैं? सौरभ जी, आपने एक एग्जांपल बताया था, and I think Ami, this will help you with this point. You know, I think you mentioned this example long several years ago. कि if let's say you're having a sweet, let's say you're having mithai, so we go by like, you know, it's white in color, it has sweet taste, we explain all that this is that shape made of these ingredients. So knowing all the details, or you explain also, it is very sweet, it's enlightening, it's amazing. That's all of the talk, all of the explanation, all of it is still vyavhar mein. But when you actually eat it and you just experience it, when you're experiencing it, you don't care what it was it made of, what was it color, how they explain. You just experience that taste, and that experience is nischay. So when you talk about swadhyay, puja, everything, that is all vyavhar. You talk about the qualities of souls. I mean, soul does not have like, oh, there is one section of jnani, one section of darshan, one section of this, one section of that. It's just for our understanding that we break it down and understand. But when we're actually sitting in samayik and experiencing the soul, at that time we have the knowledge of all of that, but our focus is not on any of that. It's just on experiencing the soul. You need the vyavharna eventually, I mean, while studying all of this, but to actually get to Nishtana. But when you experience that soul, you don't really care about all the other details at that moment. ये वो जैसे होता है like master of all and jack of, नहीं वो क्या उल्टा बोल रही मैं शायद, jack of all master of none. jack of all जो है वो concept will be व्यवहार में, and master of one thing would be निश्चय में, यानी knowing everything superficially will be व्यवहार में, and then knowing one you thing can in know more in detail too, right? You can know in as much as detail, but your focus is on knowing at that time कि मुझे इस quality के बारे में detail में जानना है. But that experience, आम की taste आप कितनी भी explain कर लो, but when you eat it,
You cannot explain the real taste. You have to experience it, and that experience part is nishchay. Whereas explaining everything in detail as you want, is still vyavharnay. Okay. Is that correct, Saurabh? Yeah, it's right. तो फिर वो आम के रस का भी एग्जांपल देता हूँ ना मैं, आम के रस का. In the same example, what is शुद्ध केवली then? हाँ, शुद्ध केवली वो ये बताया गया है कि शुद्ध केवली किसे कहेंगे, तो जिसको व्यवहार से जो शास्त्रों का ज्ञान है ना, शास्त्रों का ज्ञान तो व्यवहार से ही कहलाएगा ना, भले ही उसमें निश्चय का प्रतिपादन हो तो भी. तो कहा है कि जिस जीव को बाहर से 12 अंगों का ज्ञान हो और अंदर से आत्मा का अनुभव हो, उनको शुद्ध केवली कहेंगे. तो जब आत्मा का अनुभव उनको होगा तब हम कहेंगे वो निश्चय से शुद्ध केवली हैं, और जब वो द्वादशांग के ज्ञान से हम उनको देखेंगे ना, तब हम बोलेंगे वो व्यवहार से शुद्ध केवली हैं. तो ये एक ही पर्सन में घटित होगा, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं. Okay, got it. Thank you. देखिए बहुत सूक्ष्म है जिनवाणी, और मैं नहीं बोलता कि वो बहुत आसानी से समझ में आ सकती है. सूक्ष्म है. रीजन क्या है कि हमने कभी सुनी नहीं, हमारी अपरिचित बातें हैं सारी ना, तो वो थोड़ी सी तो कठिन लगेंगी. लेकिन एक बढ़िया चीज क्या होती है, एक राइटर ऐसा बोलता है, यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, ओह इट इज गुड. अगर आपको जीवन में समस्याएं हैं तो वो कहता बहुत बढ़िया. अगर समस्याएं नहीं होंगी तो समस्याएं क्या होती हैं कि हमारे जीवन में हमें सिखाने वाली होती हैं. दे आर रियल टीचर. ऐसी शंकाएं, जिनवाणी पढ़ते समय जो शंकाएं हैं ना, वो शंकाएं हमें रियल सिखाने वाली होती हैं. कि जब हमें शंकाएं पैदा होने लगती हैं जिनवाणी पढ़ते पढ़ते, तो ये दीज आर जस्ट गुड सिम्टम कि हमें शंकाएं पैदा होती हैं. शंकाएं पैदा होने का मतलब ये कि हमारा ज्ञान जो है ना मॉडिफाई होगा. हमने जो समझा है हो सकता है हमने गलत समझा हो, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, तो हम मन में कहते हैं अरे ये तो मैं ऐसा समझ रहा था, ओके ये इसका एक्चुअल स्वरूप ऐसा है. तो ये अमित जी, इट इज गुड कि आपको एक क्वेश्चन पैदा हुआ, और आने वाले समय सार में और ज्यादा क्वेश्चन पैदा होने वाले हैं. इवन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी काफी सारे क्वेश्चन पैदा होने वाले. अच्छा, क्वेश्चन इसलिए पैदा होते हैं, कोई काम भोग बंध की कथा में किसी को क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि वो सब लोगों की परिचित है. वी आर जस्ट वेरी फैमिलियर विद ऑल दीस थिंग्स. प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारी ये परिचित नहीं है ना, हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है. जब नहीं जानते तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो कोई तीसरी दुनिया की बात होगी, और ये कौन सी चीज है, क्या है. आज पूरी दुनिया को नहीं मालूम निश्चय ने व्यवहार ने क्या होता है, शुद्ध केवली क्या होते हैं, या संसार का स्वरूप क्या है, विश्व का स्वरूप क्या है. तो हमने भी नहीं सुनी. जब दुनिया के हम तो सामने रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो आसपास जो देखते हैं वैसे ही हो जाता है. एक साइंटिफिक स्टडी की गई, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति को 3-3 साल के लिए एक अलग अलग कल्चरल वेरिएशन में छोड़ा गया, और फिर 3 साल बाद उसकी स्टडी की गई. तो उन्होंने ये देखा कि जिस कल्चर में उस व्यक्ति को छोड़ा गया ना, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स, पहनावा, बोली, शब्दावली, विचारधारा उस कल्चर की होगी. फिर उन्होंने उसको दूसरे कल्चर में मूव किया तो वो वहां की होगी. फिर आखिर में उन्होंने उसको जिस कल्चर का था वहां भेज दिया तो वो वहां फ्रीक्वेंट हो गया. ऐसे क्या होता है, हमें सब जगह व्यवहार नहीं दिखता है ना, हमें ऐसा लगता है कि पूजन कर रहे यही धर्म है, हमें लगता है कि दान दे रहे यही धर्म है, क्योंकि व्यवहार ने से इसे भी धर्म बोलते हैं. लेकिन निश्चय ने की कोई बात नहीं करता ना, तो हम आसपास तो हमारे सारे निश्चय व्यवहार नए है, तो हमें ऐसा लगता है कि यही धर्म है बस, क्योंकि किसी ने मंदिर बनवाने में दान दे दिया, किसी ने पूजन कर ली, किसी ने बढ़िया काम कर दी, तो यही धर्म है. लेकिन वो वैसा नहीं है. धर्म यहाँ बता रहे हैं वो निश्चय ने जो है ना, इन सब का उद्देश्य क्या है, इन सब का उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन. दैट इज रियल धर्म. तो कोई यहाँ व्यवहार नए का निषेध नहीं है, वो तो ये बता रहे हैं कि व्यवहार नए का कहाँ प्रयोग किया जाएगा, निश्चय का कहाँ प्रयोग किया जाएगा, व्यवहार नए का निषेध कहाँ है वो देखना पड़ेगा ना, कि निषेध कहाँ है. वैसे नींबू खाना बहुत अच्छा होता है, बोलते हैं विटामिन सी मिलता है, लेकिन अगर आप देशी दवाई ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, तो वो तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आपको खटाई नहीं खाना. ऐसे जब हम निश्चय नए की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली यही बोलेंगे व्यवहार नए हमें निषेध है,
अभी व्यवहार नहीं, एट द टाइम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन व्यवहार का कोई उपयोग नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ व्यवहार। लेकिन जब हम बोलते हैं कि आपको मंदिर जाना चाहिए, दान देना चाहिए, परिणाम बढ़िया रखने चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, व्यवहार की बात करते हैं, तो ऐसे हमें काफी सारी शंकाएं आने वाले जो ग्रंथ का कंटेंट है उसमें होना चाहिए, होंगी, ऑफ कोर्स होंगी, लेकिन मैं कहता हूँ होना भी चाहिए। और जब तक आपको शंकाएं पैदा नहीं होंगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था यहाँ कि हम मैं सौरभ पहले जी, एक बार और एक जी क्वेश्चन, प्लीज go ahead. यानी आपने कहा, जैसे प्रीतेश ने कहा कि एक्सपीरियंस करना निश्चय में है और सिर्फ सब चीज का नॉलेज होना व्यवहार में है, यानी वो एक प्रैक्टिकलिटी का पॉइंट आता है तब निश्चय में आता है वैसे, और जो थियोरेटिकल पॉइंट है सब चीज का नॉलेज है वो व्यवहार में है। और अब जो आप कह रहे हो उसका थोड़ा ये भी डिफरेंट मीनिंग आता है कि व्यवहार में यानी अपना बिहेवियर, यानी हर चीज के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है आपका या जो बिहेवियर हो रहा है वो जो बाहर की चीज है वो व्यवहार में है, पर जो इंटरनल सिर्फ कॉन्शियसनेस की चीज है वो निश्चय में है। हाँ बराबर, ये व्यवहार को हम बहुत सरल भाषा शब्दों में भी बोलते हैं कि जो सबको दिखाई दे, वो जिसे कोई देख सकता है वो व्यवहार में है, लेकिन जिसे कोई देख नहीं सकता मेरे अलावा, उसे हम निश्चय नहीं बोलते हैं। तो मेरी आत्मा का अनुभव तो मेरे अलावा कौन देख सकता है? मैं स्वाध्याय करूंगा, कोई भी देख सकता है कि ये धर्मात्मा है। कोई मैं पूजन करूंगा, दान दूंगा, जीव रक्षा करूंगा, सब देखेंगे मैं धर्मात्मा हूं। तो व्यवहार जो कि सबके द्वारा देखा जा सके, लेकिन निश्चय ने तो मेरे अलावा किसी के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता ना। तो बराबर है, वो सेल्फ रियलाइजेशन का जो पॉइंट है वो निश्चय ने है, और बाहर में जितनी चीजें हैं वो व्यवहार में है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो निश्चय में है, पर आप नहीं, जो नहीं, बिहेव नहीं, करते वो हो व्यवहार बाहर, में है। दिमाग में क्या चल रहा है दैट इज ऑल्सो व्यवहार। केवल आत्मा का अनुभव का जो समय है ना, अनुभव, सेल्फ रियलाइजेशन, थॉट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड द एक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो थॉट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जाएगा व्यवहार में, और एक्शन ऑफ मतलब वो अब आत्मा का अनुभव कर रहा है वो निश्चय में जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, ओके। हाँ, काफी लोगों को शंका मतलब ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है कि जब हम निश्चय का चिंतन कर रहे हो तो वो निश्चय फॉलो कर रहे हैं ना, नहीं नहीं, वो भी व्यवहार में है। हाँ, प्रीतेश जी कुछ कह रहे थे आप? सौरभ जी, जय जिनेन्द्र, रोहन बोल रहा हूँ, मुझे प्रश्न था। रोहन जी बताइए। सौरभ जी, बात जैसे भी आप शुद्ध केवली की बता रहे थे, व्यवहार ने और निश्चय ने से, तो जब तक अंतरंग में जो मुझे समझ है अभी तक, या जो समझ बनी है कि जब तक अंतरंग में चीजें नहीं जाएगी तब तक बहिरंग में नहीं झलकेगी, और बहिरंग में झलक भी गई तो अंतरंग में जाना जरूरी है, और एक बार अंतरंग में चले गई तो अपने आप बहिरंग में दिखेगी। तो ये बात, तो ये तो क्लैरिटी है कि निश्चय में तो आना, व्यवहार के द्वारा माध्यम से निश्चय में आना तो जरूरी है, और निश्चय में आएगी तो व्यवहार में अपने आप आने लगेगी। अब सौरभ जी, मुझे कल से एक प्रश्न उठ रहा है, जो इंदौर में घटना है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, पर आज परिवारजन से पता चला कि उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत उपास करे, काफी सारी चीजें करी। 2 दिन पहले वो मेरे घर के सामने से ही विहार करके निकले थे। तो इतना करने के बाद, आचार्य पदवी का पालन करने के बाद, राग द्वेष को पूरी तरह से छोड़ने के बाद, जब मैं सिर्फ व्यवहार दृष्टि से बात कर रहा हूँ अभी, कि जब व्यवहार में इतनी बात जब आती है अपने यहाँ, तो अंतरंग में ऐसे विचार भी कैसे आ सकते हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ एक समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर मैं तो बहुत कमजोर हूँ उसके आगे, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा, या मैं जब उस तरफ बढ़ता हूँ आगे चिनागम की तरफ, तो कई बार भटकता हूँ, क्योंकि इतने सारे रास्ते हैं, इतनी सारी मंजिलें हैं, और उसके बीच में इतने सारी पथराव आते हैं कि आप अपने आप भटक जाते हो। तो हमें कहाँ संयम रखना चाहिए ऐसा कि हम वो गलती ना कर पाए जो। हाँ, देखिए बहुत बहुत साधारण सी बात है मैम। देखिए, आप सब लोग समझदार लोग हैं और आप लोग साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। जैसे भाई 3 तो डॉक्टर हमारे हैं, प्रीतेश जी, अमी जी और हमारे पंकज जी। आप लोगों ने भी ह्यूमन साइकोलॉजी का काफी सारा पढ़ रखा है। मैं जनागम के आधार से आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या होता है कि कोई कितना भी पढ़ ले, ठीक है, लेकिन वो
एक जो मोमेंट होता है ना, जिस मोमेंट में वो बहुत डीपली चला जाता है और अपना वो ज्ञान याद नहीं रख पाता है, तो वो उसको ऐसा लगता है ये जो मोमेंट है ना, बस इस मोमेंट के कारण मुझे जाना पड़ेगा, ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो अच्छा, फिर ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है भाई। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग, मतलब वो मुनि भी हो सकते हैं, वो श्रावक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है वो चीज। जैसे वो रुद्र की उत्पत्ति का मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई। रुद्र की उत्पत्ति तो सदाकाल किन से होती है? आरिका और मुनि से होती है। तो हम कहते हैं भाई, जो भाई जैसे उत्पत्ति का तो नियम सेम है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गई होगा उसमें, तो अब वो उनका मुनि का और आरिका का होता है। तो अब लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब है, ग्रंथों में है, अनादिकाल से वैसे ही रुद्र की उत्पत्ति होती है। अब अपन कहेंगे कैसे, उनको कैसे विचार आ जाते हैं उनको, तो वो उस टाइम वो मोमेंट समझ लो, प्रकृति का नियम है वो, लेकिन उस टाइम मोमेंट उनको वो काम विकार आते हैं, और एक को नहीं दोनों को आते हैं काम विकार, और रुद्र की उत्पत्ति का संयोग बनता है और उनका जन्म होता है। अच्छा, उसके बाद फिर उनको उसका पछतावा होता है, तो दोनों मतलब जन्म देते हैं बालक को, और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। इवन मुनि तो मोक्ष उसी भाव से चले जाते हैं। तो एक इसे हम बोलते हैं औदैहिक भाव बोलते हैं। औदैहिक भाव को क्षणिक भाव भी बोला जाता है। औदैहिक भाव के कारण से ऐसे डिसीजन किसी के भी हो सकते हैं। वो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत जिनवाणी पढ़ ली तो आपके औदैहिक भाव नहीं हो सकते हैं। इसलिए तो पंडित टोडरमल जी ऐसा बोलते हैं, हमें प्रति समय अपने परिणामों की संभाल रखनी चाहिए। हमें प्रति समय अपने परिणामों की संभाल रखनी चाहिए का मतलब क्या है? ईच एंड एवरी मोमेंट यू मस्ट बी वेरी अवेयर एंड टेकिंग केयर ऑफ योर परिणाम। हमें अपने परिणाम कहीं भी बिगाड़ने नहीं। उदाहरण के तौर पर आप लोग के वहां तो ऐसा नहीं होता होगा रोहन जी, भारत में तो बहुत होता है ऐसा। आपने कहीं गाड़ी पार्क की, वो आपकी गाड़ी 10 लाख की भी हो सकती है, 1 करोड़ की भी हो सकती है। अब भाई यहाँ तो सारे बाजार में भीड़ रहती है, हमारे इंदौर में तो खूब रहती है, अभी तो है। अब आप गाड़ी पार्क करके गए और वो पुलिस वाले आए, गाड़ी टो करके ले गए आपकी। अब वो आपको पता है, वो तो कितनी निर्दयता से आपकी 2 करोड़ की गाड़ी उठाएंगे, स्क्रैच भी आएंगे। मतलब उसमें तो थोड़े से भी स्क्रैच आ गए तो वो 2-4 लाख का काम हो जाएगा वो। तो उसमें मतलब मैं तो कोई मिलने वाले हैं तो वो कूल थे, तो क्या हुआ? अब क्या होगा सौरभ जी, इसमें चिंता भी करूं तो अब वो ले गए तो ले गए, छुड़ा के लाता हूँ भाई, अपन ने नो पार्किंग में खड़ी करी थी। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो झगड़ा करना चालू कर देते हैं, मतलब वो, और इवन ऐसे भी होते हैं कि वो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 का चालान बचाने के लिए वो पॉलिटिकल सपोर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। वो 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं, उसमें 2 घंटे लगा देते हैं। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के औदैहिक परिणाम जो होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे ऐसे हैं, उनके ऐसे हैं, उनके ऐसे होना चाहिए। वी कैन नॉट फिक्स एनी वन, एनी रूल टू एनी वन। हम किसी के लिए कोई नियम फिक्स नहीं कर सकते। इतना है, हमारे परिणामों का हम ध्यान रखें, और उसके लिए टोडरमल जी का जो मैंने वाक्य आपको बताया, हमें प्रति समय अपने परिणामों की संभाल रखनी चाहिए। प्रति समय हमें अपने परिणामों की संभाल रखनी चाहिए। ये एक उपाय है, क्योंकि हमारे परिणाम वर्तमान को देखते हैं बस। जो हमें सामने दिखाई देता है ना, हम उसको मानते हैं यही पूरा है। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी कोरोना का डिजास्टर आया था, तो हमें कैसा लगता था कि बस यही दुनिया है और अब दिस इज द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। अब लोगों को ऐसा लग रहा है सारा संसार अब खत्म होने वाला हो जाएगा, क्योंकि सामने यही दिख रहा था। लेकिन वैसा तो नहीं था ना। जो समझदार लोग थे, उनने पिछले 100 साल की उठा के उन्हें हिस्ट्री देख ली कि भी कैसा कैसा हुआ, कब क्या हुआ, और वो बड़े कूल एंड काम रहे। वो तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि जब ये सुना तो मैंने तो ठंडा पानी पिया और बढ़िया मैं तो सो गया। क्यों सो गया? क्योंकि मुझे पता था हर 10 साल में एक ऐसा सीन आता ही है, और हर 100 साल में एक ऐसी महामारी आती है कहते हैं, वॉट एवर, या हर 10 साल में एक ऐसा कोई सीन बनता है पूरे वर्ल्ड वाइड, केवल भारत में नहीं। 2008 में बना था, फिर 2018 में बना, अब 2028 में नंबर आएगा। तो आएगा वो ऐसे 10 साल का तो 10 बार का ट्रैक रिकॉर्ड तो है। तो क्या है रोहन जी, ये एक औदैहिक भाव हम इनको बोलते हैं। औदैहिक भाव तो ऐसे ही होते हैं। औदैहिक भाव में किसी को बहुत तेज क्रोध भी आ सकता है। औदैहिक भाव में किसी को बहुत बहुत ज्यादा काम भाव भी आ सकता है, मान भाव आ सकता है। अब किसी को मान भाव आ गया, हम कहेंगे सरोज जी इतना पढ़ा लिखा है, समझदार है, और हम मानते हैं ही इज ए मिलीनियर, लेकिन उसे मान भाव आ गया तो उसकी स्टडी का क्या हुआ?
तो हम कहते हैं उसका पूरा बुरा मत मानो, वो औदेक भाव थे, वो उस औदेक भाव में इतना लीन हो गया कि उसे ऐसा लगा कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो गया और ये सब लोग तो कचरा है मेरे सामने। तो रोहन जी, ये सब कुछ औदेक भाव का काम है, और एक पर्सन से हम कोई एक व्यक्ति से हम कोई रूल नहीं बना सकते कि उनके क्या औदेक भाव थे, ये तो देखो केवल ही जानते हैं, हम कोई कमेंट कर नहीं सकते उस चीज पे। रही हमारी बात, तो हमारे लिए तो मैं एक ही शब्द बोल सकता हूँ कि पंडित जी तोड़मल जी ने हमें बताया है कि प्रति समय हमें अपने परिणामों की संभाल रखनी चाहिए, वो हम तो रख सकते हैं। एग्जैक्टली सौरभ जी, तो मैं वहां तो जा ही नहीं रहा था कि ठीक है जैसा भी उनका रहा, बट औदायिक भाव जैसे अब 5 भाव है उसमें से मुझे भी औदायिक भाव आते रहेंगे क्योंकि मेरे जो कर्मों का फल रहेगा उस हिसाब से भाव भी आते रहेंगे। तो उस समय अगर मेरे द्वारा ऐसी कोई गलती हो जाए या किसी के भी द्वारा कोई ऐसी गलती हो जाए तो क्या मतलब हम हमारे भावों को कैसे संभालें अगर मुझे नहीं, ये मैंने औदायिक। बताया ना, सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आप स्वाध्याय से कनेक्टेड हैं, अब इसमें कोई व्यक्तिगत नहीं लेना कि क्या जो गए वो थे कि नहीं थे। आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दिस कि थे कि नहीं थे। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रंथों में एक ही बात आई है कि आप अगर जिनवाणी से कनेक्टेड हैं तो आप वैसे रहेंगे। जैसे मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें काफी सारी केस स्टडी दी थी कि भाई ऐसा क्यों होता है कि एक एक बहुत सुंदर लड़की ने एक दिखने में बहुत खराब लड़के से शादी की। काफी सारी केस स्टडी थी उसमें। तो उनने क्या प्रूफ किया उसमें कि उसके सामने कॉलेज में वो ही था, क्योंकि वो पढ़ने में होशियार था वो, तो उस लड़की के सामने वो ही था, तो आंखों के सामने वो ही रहा, तो वो ज्ञान का गेय वो ही बना। जब ज्ञान का गेय वो ही बना तो उससे अच्छा कोई है ही नहीं। ऐसे ही हमारे सामने है, हम ज्ञान का गेय अगर जिनवाणी को बनाएंगे ना तो जिनवाणी को ग्रहण करेंगे हम। अब हम ज्ञान का गेय अगर दूसरी चीजों को बनाएंगे तो फिर वैसे ही हमारे साथ होंगे। और फिर इसमें अगर डर नहीं हो मान लो, तो डरने के लिए तो फिर आप पढ़ते रहो, अखबार पढ़ते रहो। रोज एक्सीडेंट की खबर पढ़ते हैं, कोई सुसाइड की पढ़ते हैं, किसी की मर्डर की पढ़ते हैं, किसी के साथ चीटिंग की पढ़ते हैं। तो वो एक माउंटेन ट्रैकर करके एक ट्रैवलर है, वो पूरे वर्ल्ड घूमता है वो, तो वो एक बढ़िया सेंटेंस बोला, उसमें मुझे अच्छा लगता है, मैं सारी क्लासेस में बताता रहता हूँ। उससे जब किसी ने पूछा कि अच्छा आप ये वर्ल्ड पूरा घूमते हो, कभी कभी तो आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं, कम होते हैं, तो आपको डर नहीं लगता आप किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेके वो कौन सी हाई चेक, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब वो लिफ्ट ले लेके आगे बढ़ते जाते हैं और वो घूमते हैं। तो उसने क्या बोला कि दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है जितना कि टीवी पे दिखाई जाती है, और आप अगर अब क्राइम पेट्रोल देखकर सोओगे ना तो आपको रात भर उसी के भाव आएंगे कि मेरा पड़ोसी क्रिमिनल हो सकता है, मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर क्रिमिनल हो सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान का गेय सही रखें। कुल मिला के रोहन जी यही बात है, अपने ज्ञान का गेय हम सही रखें, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। जी सौरभ जी। जी, एंड अनदर थिंग, और एक चीज ये भी है ना कि एक ही जन मतलब एक ही दो व्यक्ति एक ही सिचुएशन को दो अलग तरीके से ले सकते हैं। एक पॉजिटिव वे में लेगा और एक नेगेटिव वे में लेगा, और उसमें कोई कर्म का बुरा उदय समझ मतलब उदय समझ कर उसको आगे बढ़ेगा, और कोई उसको कर्म का उदय न समझ कर उसके ऐसे परिणाम बिगड़ जाते हैं। हाँ देखिए, ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। वो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि प्लीज टेल मी द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू हु आर यू। आप अपने दोस्तों के नाम मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा आप क्या हो। तो ऐसा ही है कि दोस्तों के नाम बता दोगे मतलब कि वो दोस्त कैसे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी होगी, आप वैसे लोगों के साथ रहते हैं। ऐसे आप मुझे आपका डे रूटीन बता दो, आपके मिलने वालों का नाम बता दो, मैं आपको बता दूंगा आप क्या हो। हम बताएंगे हम तो स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी का चिंतन करते हैं, साधर्मी वात्सल्य रखते हैं, साधर्मियों से बात करते हैं, तो फिर हमारा पूरा उपयोग वैसे ही रहेगा हमारा, और विचार भी वैसे ही आएंगे हमारे, है ना। जैसे कोई इंडिया से आता है तो लोग मसाले मंगाते हैं। अभी हमारे कुंजन जी और प्रेरित जी ने यहाँ से पूजन करने के धोती पंचे मंगाए मेरे से, तो बड़ी अच्छा लगा मुझे कि लोग मसाले तो खूब मंगाते हैं, यहाँ से लोग मसाले भेज दो, ये भेज दो। तो वो सिंपल सी है कि भाई हम लोग रोज मिलने वाले लोग हैं, हम लोग रेगुलर में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आपको भाव काहे के आएंगे? आपको तो यही आएंगे कि भाई इंडिया से कुछ आ रहा है तो हमें तो पूजन से संबंधित मंगा दो, शास्त्र से संबंधित मंगा दो, ये रहेगा। तो ये हम लोग एकदम क्लियर रखें अपने दिमाग में।
कि हमारे सामने जो गेय होगा तो गेय अपना अच्छा बनाए, स्वाध्याय कोई बनाए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। हाँ, तो आई होप ये अच्छा, रोहन जी अच्छा क्वेश्चन उठाया और सबको मेरे ख्याल से क्लैरिफाई हो गया। जी सौरभ जी। चलिए, अभी समय हुआ, हमने आज 10 तो 11 नंबर गाथा ली। नेक्स्ट टाइम हम इसको पढ़ेंगे और फिर 9-10 गाथा के बाद 11 नंबर की गाथा हम पढ़ के उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताइए ज्ञान पुत्र जा रहे जिनवाणी, ये जिनवाणी माँ को वंदना सुत बारी है। वंदना जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। दिवाली की आप लोगों को शुभकामनाएं। नेक्स्ट टाइम हम दिवाली पे चर्चा करेंगे। सौरभ जी, दिवाली के दिन में मतलब दिवाली के तो है तो ऐसे थर्सडे को या फ्राइडे, फिर संडे को क्लास लेंगे राइट? क्लास हमारी संडे को रहेगी। तो आप लोग दिवाली का कोई स्पेशल सेशन चाहते हैं क्या? नहीं सौरभ जी, अगर तो हम तो नेक्स्ट वीक भी समय सारी ले रहे हैं, बट अगेन आपको कुछ अगर कुछ आप लेने वाले हैं या अगर आप ऑनलाइन कुछ रखने वाले हैं तो वो प्रेफर करेंगे अगर चाहिए तो, या फिर हाफ एन आवर लेंगे क्लास ले लेंगे सौरभ। क्लास अब उस दिन आप लोग सुबह सुबह मेरे ख्याल से मंदिर जाएंगे ना? नहीं सौरभ जी, हम लोग थर्सडे को ही जा रहे हैं जिस दिन दिवाली है, तो उस दिन हम मंदिर जाएंगे। बट संडे को दिवाली का प्रोग्राम है बट ऑनलाइन ही है, तो मंदिर नहीं जाना है हमको। अच्छा ठीक है, तो फिर अपन संडे को डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र। ओके बाय। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।